Anup, which language would you be preferring for the interview, Hindi or English? So I would prefer bilingual language. Right. So we can ask you questions in both Hindi and English. Yes. Okay. So Anup, बताइए कुछ अपने बारे में बताइए. So my name is Anup Sharma. I am from District Unnao, Himachal Pradesh. Can you be a little louder, please? My name is Anup Sharma. I am from District Unnao, Himachal Pradesh. Sir, I have done my graduation in Computer Science and Engineering from NIT Hamidpur. After that, sir, I have worked in Snapdeal as a software developer for almost 2 years. And from 2017 to current time, I am preparing for civil services exam. Meanwhile, sir, I have given 2 interviews in UPSC, and it is my 4th interview in Himachal Pradesh Public Service Commission. Okay. Anup, वर्ल्ड बैंक ने अजय बांगा को अपॉइंट किया है एज इट्स डायरेक्टर. Yes. क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्प्लीकेशंस इसकी भारत के लिए क्या हो सकती हैं? So he is a person of Indian origin, so he better knows the problem of India. So he is also any person has a love for his motherland. So definitely we will have more preference to accessing the loans from the world bank. That can be one of the possible positive side of this. But I guess he has been appointed by USA, so he will be more objective in his decisions. आपने नोटिस किया है कि पिछले कुछ समय में there has been a lot of world leaders who are PIOs, Yes, sir. who are person of Indian origins. Yes, sir. Do you think something is changing about India, or do you think it is the same way it has been traditionally going on the same way? So many person of Indian origins has been appointed as the head of many states. Like Rishi Sunak has been appointed as the Prime Minister of UK, and previous Prime Minister of the Ireland was also a person of Indian origin. Vice President of USA Kamala Harris is a person of Indian origin. So something has been changed in the past few years. And the thing is that many of the people has moved abroad long back, and they have excelled in their own fields. So their excellence of Indians in the abroad, the countries in abroad, is making them more successful in their lives. Elections are going to take place very soon. Yes, sir. In which state or states are elections going to take place? सर अभी करंटली जो इलेक्शन है कर्नाटका में स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं और 2024 में जनरल इलेक्शन इंडिया में हो रहे हैं. अभी जैसे कर्नाटका में हो रहे हैं in next 1 week, then 24 में जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं, उससे पहले भी एक दो स्टेट्स के होंगे. तो आपको नहीं लगता कि एक बार एक इलेक्शन होना चाहिए, जैसे we are working on something called as one nation one election also? Yes, sir. Can you elaborate it and present your viewpoint on it? सर अगर हम इसे अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए तो ये स्कीम बहुत अच्छी होगी, क्योंकि इलेक्शन में जो एक्सपेंडिचर है ये बहुत अधिक बढ़ चुका है. पर इसको सर इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी हर्डल्स हैं. जैसे कि लेट्स से किसी स्टेट की असेंबली को बीच में भंग कर दिया जाता है, तो किस तरीके से उसे मैनेज किया जाए और इस साइकिल को किस तरीके से साइमल्टेनियसली अरेंज किया जाए, तो ये इसके कुछ चैलेंजेस हैं. पर फिर भी सर अगर हम किसी तरीके से कुछ सॉल्यूशन निकाल के वन नेशन वन इलेक्शन की ओर बढ़ें तो एक अच्छा कदम होगा. आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन निकालना चाहिए, क्या निकल सकता है सोल्यूशन? सर अगर किसी स्टेट की विधानसभा को भंग किया जा रहा है तो उस केस में एक केयरटेकर गवर्नमेंट को बाकी सब जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं उनकी सहमति से एक केयरटेकर गवर्नमेंट को अपॉइंट किया जा सकता है. तो एक पॉसिबल सॉल्यूशन है कि रिमेनिंग टाइम तक एक केयरटेकर गवर्नमेंट स्टेट्स में काम करे. आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, जब भारत में पहली बार जनरल इलेक्शन हुआ था आज़ादी के बाद की बात कर रहा हूँ, तो कुछ स्पेशल हुआ था ये वन नेशन वन इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से. आप अवेयर हैं उस चीज़ के बारे में? सर मैं इस चीज़ से अवेयर हूँ कि 1960s तक ये साइकिल वन नेशन वन इलेक्शन के तर्ज पर ही चल रही थी, और उसके बाद कुछ स्टेट्स की असेंबलीज को भंग किया गया, और तो उसके बाद ये साइकिल थोड़ा इम्बैलेंस हो गया. तो इससे जब आज़ादी से हमने शुरुआत करी थी तो वन नेशन वन इलेक्शन से ही. So are you an advocate, are you an endorser of one nation one election, or you think it is practically impossible to actually implement this scheme? सर मैं सर इस स्कीम
पक्ष में हूँ कि इसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, पर इसके सिर्फ कुछ हर्डल्स हैं। अगर उन्हें रिमूव कर दिया जाता है तो जरूर इसे इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगी। इस बजट में एक टर्म यूज की गई है जिसको श्री अन्न कहा गया है। श्री अन्न, आप अवेयर हैं उसके बारे में? सॉरी सर, डू यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मिलेट्स इन आवर इकोनॉमी? जी सर, मिलेट्स अभी 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है। मिलेट्स की किसने किया है डिक्लेयर? सर यूनाइटेड नेशन ने ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया और इंडिया ने इसको रिकमेंड किया। सर मिलेट्स की हेल्थ वाइज भी काफ़ी अच्छी इसके लाभ हैं और इकोनॉमी को भी इसके लाभ हैं। इकोनॉमी को सर इसके ये लाभ हैं कि एग्रीकल्चर जो हमारा इंडिया का है ये मोस्ट ऑफ द टाइम सर मानसून पे डिपेंड करता है, और अगर मानसून फेलियर होता है तो एग्रीकल्चर में भी इसके नुकसान देखे जा सकते हैं। पर जो मिलेट्स हैं ये ड्रॉट रेजिस्टेंट काफ़ी हद तक होते हैं, तो इस कारण ये जो छोटे किसान हैं उनकी आय को बढ़ाने के लिए एक अच्छा सोर्स हो सकता है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में इसकी मदद मिलेगी और हेल्थ वाइज भी सर इसके काफ़ी बेनिफिट हैं। जैसे डायबिटिक जो लोग होते हैं उनके लिए मिलेट्स को सजेस्ट किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स बताएंगे मिलेट्स के? शोरगुम, ज्वार, ये कुछ मैं भी रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। कुछ ऐसे एरियाज बता सकते हैं हिमाचल में जहाँ पे हम मिलेट्स की कल्टीवेशन कर सकते हैं पर्टेनिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस, टू द एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस? जी सर डिस्ट्रिक्ट ऊना में, बिलासपुर, कांगड़ा, यहाँ पे हम मिलेट्स को कल्टीवेट कर सकते हैं। एक एससीओ की मीटिंग चल रही है जी सर, भारत में। जी सर, तो क्या होता है एससीओ, क्या इंपॉर्टेंस है इसका? सर ये शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी शुरुआत सर 2001 में इसकी करी गई थी और उसके बाद से सर इंडिया और पाकिस्तान इसके साइमल्टेनियसली मेंबर बने थे। और सर ये एशिया महाद्वीप का एक समूह है जो सिक्योरिटी और इकोनॉमी रिलेटेड कोलैबोरेशन कर रहा है, और करंटली इसका हेड इस साल के लिए इंडिया है और गोवा में सर इसकी समिट हो रही है। आपको लगता है कि इस समिट से कि कोई भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस इंप्रूवमेंट होने का स्कोप है कुछ? सर स्कोप तो है सर, क्योंकि अभी बिलावल भुट्टो जी इंडिया में आए हुए हैं और इससे पहले सर इंडिया और पाकिस्तान की कोई भी ऊंचे स्तर पर वार्तालाप नहीं हुई है बहुत समय तक। तो सर ये एक चांस प्रोवाइड करता है कि हम हायर लेवल पे पाकिस्तान के साथ इंगेज कर पाएं। क्या मुद्दे क्या हैं कश्मीर को, जो चलो ठीक है हम मानते हैं कश्मीर और टेररिज्म एक होता है, क्या कोई इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं भारत पाकिस्तान के बीच में? सर इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट एक हम अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान से कॉरिडोर की डिमांड कर रहे थे कि ताकि हमारे गुड्स आसानी से अफगानिस्तान तक मूव कर पाएं, पर पाकिस्तान ने उसे अलाउ नहीं किया था, तो ये एक इकोनॉमिक मुद्दा भी है। और सर दूसरी चीज़ है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है ये ऑलमोस्ट सेम है, तो ये एक तरह की सिमिलर टाइप की इकोनॉमीज हैं। जिस तरह की गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं उसी तरह की पाकिस्तान भी प्रोड्यूस करता है, तो जो ट्रेड में एक कॉम्प्लीमेंटरिटी चाहिए होती है कि अलग अलग गुड्स प्रोड्यूस करें, तो इस तरीके से हमारा ट्रेड उस लेवल तक नहीं पहुंचा, ट्रेड अभी बहुत ही कम है। और तीसरा सर वाटर शेयरिंग से रिलेटेड भी पाकिस्तान और इंडिया के डिस्प्यूट्स हैं। क्या डिस्प्यूट्स हैं? सर इंडस वाटर ट्रीटी जो है, तो इसमें इंडिया का ये एलिगेशन है कि पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि जो इसमें वेस्टर्न रिवर्स हैं उसके सारा का सारा इस पे यूटिलाइजेशन के लिए पाकिस्तान इसको यूटिलाइज कर सकता है, और ईस्टर्न जो रिवर्स हैं उसमें इंडिया यूटिलाइज उसका पानी कर सकता है। वेस्टर्न रिवर्स कौन कौन से हैं? सर वेस्टर्न रिवर इंडस, झेलम एंड चेनाब। और रावी का पानी इंडिया यूज करेगा कि पाकिस्तान यूज करेगा? सर इट्स इंडिया। अगर दोनों देशों के संबंध आपस में ठीक होते हैं, मतलब पाकिस्तान में भी ट्रबल चल रहा है इस मसले में, तो भारत को ज्यादा फायदा होगा या पाकिस्तान को ज्यादा फायदा होगा? सर अगर नेबर्स अच्छे से रहते हैं तो दोनों को ही फायदा होगा। जैसे कि सर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि वी कैन चेंज अवर फ्रेंड्स बट वी कैन नॉट चेंज अवर नेबर्स। सो अगर दोनों के संबंध अच्छे होते हैं तो ये दोनों नेबर्स के लिए फायदेमंद होगा। भारत को क्या फायदा होगा, पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? एक एक फायदा बताइए दोनों देशों को। जी सर भारत वर्ल्ड अपने आप को एक वर्ल्ड लीडर के रूप में स्थापित करना चाहता है, और इसकी शुरुआत साउथ एशिया से हो सकती है। और अगर हमारे रिलेशन पाकिस्तान के साथ अच्छे होते हैं तो हम एक अच्छे लीडर के रूप में उभर कर आ सकते हैं, तो ये भारत के लिए फायदा है। और अगर पाकिस्तान हमारे साथ अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश करता है तो उनको इकोनॉमिकली भी फायदा होगा और
उनके जो अभी कश्मीर में जैसे उनके आर्मी के एक्सपेंडिचर्स हैं, तो डिफेंस एक्सपेंडिचर उनका कम होगा, वो अपनी इकोनॉमी पे बेहतर ध्यान दे पाएंगे। आपको लगता है वो कश्मीर को अपने एजेंडा से ड्रॉप कर देंगे? सिर्फ अभी के जो उनके बयान हैं उनके अनुसार मुझे लगता नहीं कि वो नियर फ्यूचर में से ड्रॉप करेंगे। देखिए, हम आईपीएल चल रहा है, पाकिस्तान के प्लेयर्स को अलाउ नहीं करते हैं भारत में क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन पाकिस्तान के फॉरेन इन्वेस्टर को हम अलाउ कर रहे हैं भारत आने के लिए। तो आपको नहीं लगता ये बहुत ही एक तरह का एक गलत स्टैंड है भारत सरकार का? सिर्फ फॉरेन डिग्निटरीज जो होते हैं वो इनके साथ वार्तालाप करने के लिए सर इन्हें तो आमंत्रित किया ही जाना चाहिए, पर मैं इस पक्ष में हूँ कि भारत सरकार अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स को भी अगर आने की अनुमति दे तो ये और बेहतर होगा, क्योंकि हमें फ्यूचर में अगर उनके साथ रिलेशंस अच्छे बनाने हैं तो पीपल टू पीपल लेवल कॉन्टैक्ट्स भी अच्छे होने चाहिए। क्या रीजन है कि हमने पाकिस्तान के प्लेयर्स को आईपीएल खेलने से बिल्कुल मना कर दिया कि हम नहीं खिलाएंगे इनको? उसका कोई स्पेसिफिक रीजन है जो 2008 के बाद हमने इनको कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया कि हम नहीं खिलाएंगे? सर आई गेस अच्छे से सर इसका मेरे को नहीं पता, पर मे बी सर मुंबई अटैक्स की वजह से। हाँ, उसके बाद से हमने किया। कोई स्पेसिफिक रैशनल दिया था सरकार ने कि हम इस वजह से नहीं इनको खेलने देंगे? सर इस अभी को नहीं पता। ठीक है। सो भी आप एससीओ मीटिंग्स की बात कर रहे थे, जी। क्या कोई और भी ऐसा कोई देशों का समूह, कोई और भी ऐसी मीटिंग्स इंडिया में चल? जी मैम, करंटली हम G20 को भी हेड कर रहे हैं और इसकी सारी मीटिंग्स इंडिया में इस साल। G20 में G stands for what? Sorry मैम, maybe it's government, but I'm not probably sure। और इसको G20 क्यों कहा जाता है? G21 या G19 क्यों नहीं कहा जाता? मैम इसमें विश्व की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल हैं, जिसमें 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, इसलिए इसे G20 कहा जाता है। So it is group of 20. G stands for group। ओके। और इस बार इंडिया होस्ट, मतलब इंडिया होस्ट कर रहा है, तो इंडिया का क्या स्टेटस है इस बार? उसको हम क्या क्या बोलते हैं कि थीम नहीं, इंडिया किस कैपेसिटी में इसको होस्ट कर रहा है? मैम इंडिया इस बार चेयरमैन है। ओके, ऑलराइट। और आप क्या देखते हो कि G20 होस्ट करने के फिर से मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, अदरवाइज इंडिया को क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? मैम इंडिया इस समय जो ट्रेड की सिचुएशन है इसको अपने पक्ष में इस समय अपने पक्ष में पॉलिसीज बनाने में मदद मिल सकती है। दूसरा, जैसे कि इस समय यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, इसको रिजॉल्व करने में भी इंडिया एक भूमिका निभा सकता है। क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का मुद्दा है, इसमें इंडिया नई जो रेगुलेशंस बन रही हैं और उसमें अपना योगदान दे सकता है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिसमें इंडिया अपनी मदद दे सकता है। हिमाचल में कौन कौन सी जगहों में G20 होस्ट हुआ है? Sorry, ma'am, I'm not able to recall। Just read about it. Okay. So your hobby is playing Sudoku and chess. Yes, ma'am। सुडोकू कितने प्रकार के हो सकते हैं? Are there any types of सुडोकूस कि वही जो न्यूमेरिकल हम अखबार में देखते हैं 9x9 वाला वही है? नहीं मैम, कुछ और भी हैं, जैसे इसका एक स्केयर होता है, जैसे 9x9 का एक स्केयर है, पर कुछ ऐसे भी हैं जिसमें स्केयर की वजह से जैसे चेस का फॉर्मेट होता है उस तरह से हो, या फिर जैसे चतुरंग फॉर्मेट जैसे ट्रेडिशनल इंडियन था उस तरीके का हो, या हेक्सागोनल फॉर्मेट में भी इसके सुडोकूस आते हैं। उनके कुछ नाम हो? सॉरी मैम, मुझे पता नहीं। तो जैसे चेस में चैंपियनशिप्स होती हैं और हमारे पास वर्ल्ड चैंपियंस हैं चेस में, तो क्या सुडोकू की भी कुछ ऐसी चैंपियनशिप्स हैं या कोई भी वर्ल्ड चैंपियन है आपके ध्यान में? नो मैम, पर इसके मिकी काजी हैं जो इसके फादर के रूप में जाने जाते हैं, तो उन्होंने इसको पॉपुलराइज किया था, पर इसकी चैंपियनशिप है सच नहीं, बिकॉज में इट इज अ सोलो गेम, सो पर इसमें टाइमिंग का फॉर्मेट हो सकता है, सो पर मैं इसकी चैंपियनशिप के बारे में जो कोई ऑर्गेनाइज की जाए उसकी मेरे को भी नॉलेज नहीं है। क्या इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है सुडोकू का? यार एक्चुअली इसमें डिस्प्यूट है। कुछ लोगों का मानना है कि एक स्विस मैथमेटिशियन थे लियोनार्ड यूलर, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी, पर
जापान में ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ 19वीं सेंचुरी में। तो अभी हम इट इज स्टिल डिबेटेबल, हम नहीं जानते कि मैम ऐसे इसके जो इसकी शुरुआत हुई है वो लियोनार्ड यूलर ने ही करी है, जो कि वो स्वीडिश स्विस मैथमेटिशियन। चेस के वर्ल्ड चैंपियन इस समय कौन है? मैम डिंग लायर, ही इज फ्रॉम He's from चाइना। China. और इंडिया में who is the leading personality now, or who is the champion now? मैम लीडिंग पर्सनालिटी है अर्जुन एरिगेसी, पर मैं चैंपियन के बारे में मुझे और देखना पड़ेगा। You must know about that. Okay. Also, you have written a lot about meditation, right? तो किस प्रकार की मेडिटेशन के बारे में आपको जानकारी है? जी मैम, मेडिटेशन को हम इसके कंटेंट और इसके प्रोसीजर के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे प्रोसीजर के हिसाब से अगर देखें तो इसकी गाइडेड और अनगाइडेड मेडिटेशन है। गाइडेड में कोई हमें एक्सटर्नल हमें एक हमारा टीचर है जो हमें गाइड कर रहा हो या ऐप के माध्यम से हमें गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं। अनगाइडेड में हम सोलो मेडिटेशन करते हैं। पर इसके कंटेंट के आधार पे अगर हम देखें तो इसमें मेडिटेशन में विपासना मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन है, मंत्रा मेडिटेशन है, कंसंट्रेशन मेडिटेशन है, विजुअलाइजेशन मेडिटेशन है, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन मेडिटेशन है। तो ये कुछ इसके टाइप्स हैं। विपස්සना और माइंडफुलनेस में क्या फर्क है? इट इज ऑलमोस्ट सेम जी, पर विपासना एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है क्योंकि इसको गौतम बुद्ध जी ने इसको सबसे पहले शुरुआत करी थी और एस.एन. गोयनका जी ने इसको काफी पॉपुलराइज किया था। पर इसमें सिर्फ माइंडफुलनेस से आगे बढ़कर भी इसमें शरीर के जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो अपनी ब्रेथ से शुरुआत करते हैं आनापान मुद्रा से, और उसके बाद हम बहुत डीपर लेवल्स तक जाते हैं ताकि हम अपने जैसे हम अपने शरीर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें गतिविधियाँ हो रही हैं उनको भी जानने की कोशिश करते हैं। और माइंडफुलनेस में ये एक अवेयरनेस है। अगर हम इसको इस तरह से मान के चलें कि माइंडफुलनेस एक ब्रॉडर कैटेगरी है, विपासना उसका एक स्पेसिफिक टाइप है। माइंडफुलनेस में हम अवेयर रहते हैं तब हम अपनी सांसों के लिए, अपने सराउंडिंग्स के लिए ये हम करंट में जिए, तो ये माइंडफुलनेस है। कौन थे फादर माइंडफुल? सॉरी इसके बारे में तो क्या माइंडफुलनेस में भी आंख बंद करके बैठा जाता है? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर मैं इस इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठ रहा हूँ तो इस समय भी मैं माइंडफुल हो सकता हूँ। मेरी इस समय जो अगर मैं बात करने में ही पूरी मैं अपनी कंसंट्रेशन लगाऊं या अपनी सराउंडिंग के प्रति अवेयर हूँ, ये भी एक माइंडफुलनेस है। ओके, आपने बताया कि इस साल को ईयर ऑफ मिलेट्स बोला गया है और इंडिया ने प्रपोज किया था। क्या कोई और ऐसी चीज़ में इंडिया ने यूएन को प्रपोज की थी जो पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट करी है और हम उसको एज अ डे फॉलो करते हैं और हम उस एक्टिविटी को उससे मनाते हैं? मैम एक ऑर्गेनाइजेशन है, डे को मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया ने सजेस्ट किया था और ये इसका हेडक्वार्टर भी इंडिया में है। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जो फिजिकल एक्सरसाइज और मेडिटेशन से ही रिलेटेड हो, भारत में उसका ओरिजिन हुआ हो और भारत ने यूएन को प्रपोज किया हो? इट्स योगा, इंटरनेशनल योगा डे, दैट इज किस दिन मनाया जाता है? इट इज ऑन 21st June आई गेस, नॉट एग्जैक्टली। और मेडिटेशन और योगा में क्या सिमिलरिटीज या डिफरेंसेस? मैम योगा, मेडिटेशन इज अ पार्ट ऑफ योगा। योगा में पर मेडिटेशन के साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइजेज भी करी जाती हैं, कुछ पोस्चर्स हैं ये योगा में करे जाते हैं, और योगा एक काइंड ऑफ लाइफस्टाइल है, इसमें कुछ हमें रूल्स का भी पालन करना पड़ता है। पर मेडिटेशन में जनरली हम ये देखते हैं कि एक जगह पे बैठ कर उसको अपने माइंड को फोकस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो मेडिटेशन में कोई रूल्स नहीं होते? नहीं, मेडिटेशन में भी होते हैं, पर पूरे ऑल ओवर लाइफ की अगर बात करें जैसे यम और नियमास, तो योगा के ये अंग हैं, तो इसमें हमें पूरी लाइफस्टाइल किस तरह से उठना है, किस तरह के हमें आहार करना है, तो ये भी योगा में कुछ नियम हमें फॉलो करने हैं। ओके, और आप एक इंजीनियर हैं जी और किसी स्नैपचैट में सॉफ्टवेयर डेवलपर भी रहे हैं, जी। तो इंजीनियरिंग से एडमिनिस्ट्रेटर का सफर माने ये कैसे आपका हाउ डिड यू थिंक दैट आफ्टर डूइंग योर इंजीनियरिंग यू कैन गेट इनटू एडमिनिस्ट्रेशन एंड हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? आईआईटी हमीरपुर से पढ़े हैं, तो आप तो एक सीट खराब कर रहे हैं अगर हम आपको इधर मौका देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में आने का। नहीं, मैं पूरे तरीके से जस्टिफाई कर रहा हूँ कि मुझे ये सीख मिलती है, और मैम एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, एक स्पेशलिस्ट की आजकल एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी ज़रूरत है। जैसे हम
लेटरल एंट्री की बात कर रहे हैं, जिसमें स्पेशलिस्ट को एडमिनिस्ट्रेशन में लाया जाए ताकि जो पॉलिसी मेकिंग है ये स्पेशलाइज्ड तरीके से की जा सके। और आजकल डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत भी हम डिजिटाइजेशन ड्राइव को आगे लेकर जा रहे हैं, तो उसमें भी मैं एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता हूँ। तो वो तो आप एक इंजीनियर होने के नाते भी दे सकते हो। जी। व्हाई एन एडमिनिस्ट्रेटर? एडमिनिस्ट्रेशन में आने का जो मेरा मुख्य रीज़न था वो ये है कि ये एक बहुत अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ ही मुझे डाइवर्स फील्ड में काम करने का मौका भी देती है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर मैं अगर सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मैं हेल्थ और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स पे भी काम कर सकता हूँ, जो कि मेरे को काफ़ी सेटिस्फेक्शन देगा इन लॉन्ग रन। तो आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए हम आपको एडमिनिस्ट्रेटर बना दें? नहीं मैम, मेरी एफिशिएंसी के लिए आप मुझे एडमिनिस्ट्रेटर बनाएं। मैं अच्छी एफिशिएंसी से काम करूँगा और इसलिए मुझे एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जा सकता है। ओके, तो आप अपनी जॉब से मुझे कोई एक इंस्टेंस कोट करके बताइए जहां आपने एक एफिशिएंट एम्प्लॉय होने का फर्ज निभाया। जी मैम, एक्चुअली जिस टीम में मैं काम करता था उसमें एक प्रॉब्लम थी कि डाउन टाइम उसका बहुत रहता था। डाउन टाइम का था कि कोई सिस्टम अगर यूज़र रिक्वेस्ट अधिक हो जाती है तो उस समय वो अच्छे से काम नहीं कर पाता या सर्वर्स डाउन हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हमें रेक्टिफाई करने के लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया, क्योंकि हमारे जो टीम थी इसके काफ़ी कंपोनेंट्स थे, तो हमें ये पता नहीं चल पाता था कि कौन सा कंपोनेंट खराबी कर रहा है। तो हमने उसे आइडेंटिफाई करने के लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम को बनाया और उस मॉनिटरिंग सिस्टम से हमें रियल टाइम पता चल जाता था कि कौन सा सिस्टम और किस वजह से ये डाउन जा रहा है। तो इस वजह से इसका हम डाउन टाइम को काफ़ी हद तक कम कर पाए और इस वजह से मुझे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी मिला था। वो बताइए, आप ऊना डिस्ट्रिक्ट से हैं, किस लिए फेमस है आपका डिस्ट्रिक्ट? मैम, हिमाचल में ऊना एक प्लेन डिस्ट्रिक्ट है, तो इसके अलावा मैम एक इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट भी है, तो इसलिए ऊना डिस्ट्रिक्ट फेमस है। कौन कौन से इंडस्ट्रियल एरियाज हैं? मैम, हरोली, अम्ब, महतपुर, ये कुछ मुख्य इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। अभी हिमाचल गवर्नमेंट ने अपने बजट में कुछ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की बात की है। जी कुछ बताएंगे? जी मैम, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में मैम वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए ग्रीन हाइड्रोजन को पैदा किया जाएगा और इसके लिए सरकार सब्सिडीज देगी। कहाँ पर बनेगा? सॉरी मैम, मैंने बजट का जो डॉक्यूमेंट पढ़ा था उसमें स्पेसिफिक लोकेशंस नहीं है, पर इसके लिए एक सरकार एक पॉलिसी लाने की बात कर रही है। और आप कहने कि ऊना डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए है जी। अच्छा, आप ऊना में इंडस्ट्री के कुछ इश्यूज देखते हैं, कुछ चैलेंजेस आपको लगते हैं? जी मैम, एक तो ऊना में इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जैसे कि जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना सुदृढ़ नहीं है। हालांकि काफ़ी एरिया से बेहतर है, पर और अच्छा किया जा सकता है। जैसे कि हरोली जैसे मैंने वहाँ पे विजिट किया था, तो वहाँ पे रोड अभी भी, क्योंकि हैवी ट्रैफिक के कारण रोड काफ़ी हद तक टूट जाते हैं और उन्हें बार बार बनाना पड़ता है। तो उसमें अगर सीमेंटेड रोड्स बनाए जाएँ जो कि जिनकी लाइफ अधिक हो, तो ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं। इसके साथ में इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू है, इलेक्ट्रिसिटी कट्स लगते रहते हैं, तो जो कि इंडस्ट्रियल हब्स हैं उनके लिए इशू है। तो ये कुछ मुद्दे हैं इंडस्ट्रीज के। आप ऊना में कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं? मैं फ्रॉम बंगाल। कोई फॉर्मल आपके जो है कुछ मिनिस्टर भी रहे हैं जो ऊना रीजन से हैं डिस्ट्रिक्ट? जी मैम, श्री वीरेंद्र कंवर जी पहले बंगाणा से विधायक थे और वो मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज थे। अभी कोई पॉलिटिकल लीडर है एट प्रेजेंट गवर्नमेंट में जो ऊना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? जी मैम, डिप्टी सीएम श्री भूपेश अग्निहोत्री जी वहाँ से। ऊना में कोई बहुत बड़ा कोई आपका कल्चरल जो है सेंटर स्टैब्लिश हुआ है कल्चरल आर्ट को प्रमोट करने के लिए हिमाचल में? जी मैम, कहाँ पर? ये मैम ऊना में ही है, ऊना से 6 किलोमीटर दूर है। ये कला केंद्र, मैं एग्जैक्टली इसका नाम याद नहीं कर रहा, तो ये कला केंद्र एक एस्टेब्लिश हुआ है। और हिमाचल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ऊना में हम ग्रीन कॉरिडोर जो है वो एस्टैब्लिश की जाए। रादर पूरे हिमाचल में गवर्नमेंट ने 5 ग्रीन कॉरिडोर की बात की है। जी मैम। एक ग्रीन कॉरिडोर में ऊना डिस्ट्रिक्ट भी इंक्लूडेड है। जी। आप पूरा कॉरिडोर बताएंगे मुझे?
परवाणु से नूरपुर तक जो जा रहा है उसमें ऊना भी रूट में आता है। उसको नहीं आता है। और कोई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भी ऊना को इंक्लूड करने की बात की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऊना डिस्ट्रिक्ट अक्सर न्यूज़ में रहता है कि वहाँ पर सेक्स रेशो जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स तो रीज़न स्पेसिफिक रीज़न बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की कंपैरिजन में ऊना में ऐसा क्या रीज़न मैम ऊना की सेक्स रेशियो चाइल्ड सेक्स रेशियो पर्टिकुलरली रिपोर्ट कम है 875 के आसपास SSSB 2011 में थी। और इसका अगर पर्टिकुलर रीज़न की बात की जाए तो ऊना में हेल्थ फैसिलिटीज़ और अल्ट्रासाउंड फैसिलिटीज़ बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की तुलना में पहले आ गई हैं। और ये एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है कि इसमें चाइल्ड को आइडेंटिफाई करना थोड़ा आसान हो गया और उस समय रेगुलेशंस इतनी अच्छी नहीं थी, तो इस कारण सेक्स रेशियो इनिशियली कम हुआ, पर हमने इसमें काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं और ये अभी 925 के आसपास चाइल्ड सेक्स रेशियो ऊना में पहुँच चुकी है। और आपके ऊना में कौन-कौन से पार्क्स हैं एज इन इंडस्ट्रियल पार्क्स? मैंने बल्क ड्रग पार्क ऊना में अभी रिसेंटली खुला है और एक कोई पार्क जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है? बल्क ड्रग पार्क तो भी ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ। जी मैंने मेगा फूड पार्क है सिंगा क्रीम का। आपको लगता है कि वहाँ से लोकल कम्युनिटीज को कुछ फायदा हुआ है उस पार्क से? जी मैम, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है और लोकल कम्युनिटीज़ जो कि शुगर के की कल्टीवेशन करते हैं तो उनको इसका फ़ायदा हुआ है। पोटैटो की कल्टीवेशन ऊना में होती है तो उनको भी इसका फ़ायदा हुआ है। हिमाचल स्टेट ने अपनी जो है हाइड्रो पावर पॉलिसी में चेंज किया है। हिमाचल गवर्नमेंट की जो हाइड्रो पावर पॉलिसी 2006 की थी उसको गवर्नमेंट ने रिस्ट्रक्चर किया है। आप अवेयर हैं उस चेंज से? ये सब नई क्या कौन सी पॉलिसी है? रिसेंटली वाटर सेस को लगाने की बात हिमाचल प्रदेश में करी गई थी जिससे कि हिमाचल प्रदेश को 4000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। वो एक इनिशिएटिव लिया गया था। क्या गवर्नमेंट की हाइड्रो पावर पॉलिसी को रिस्ट्रक्चर रीफ्रेम करके हिमाचल गवर्नमेंट कोई एक अपनी ब्रॉडर पॉलिसी लेकर आई है? कुछ ऐसा नाम आपने सुना हो, स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी ऑफ हिमाचल गवर्नमेंट? यस मैम, मेरे अभी दिमाग में आया बट आई एम नॉट एग्जैक्टली एबल टू रिकॉल इट। और हिमाचल स्टेट ने अपने बजट में क्या मेजर अनाउंसमेंट किया है? व्हाट इज द मोस्ट peculiar feature of this current budget? मैम हेल्थ अलग-अलग सेक्टर्स में अलग-अलग योजनाएं चलाई गई हैं और OPS के लिए सहमति दी गई है इस बजट में। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में राजीव गांधी आवास विद्यालय स्थापित किए जाएंगे हर कंस्टिट्यूएंसी में और एक मॉडल कितने ऐसे मॉडल बन जाएंगे स्कूल? 68 बन जाएंगे क्योंकि हर कंस्टिट्यूएंसी में एक मॉडल स्कूल का निर्माण किया जाएगा। सिमिलरली मैम हर कंस्टिट्यूएंसी में एक मॉडल हेल्थ सेंटर भी बनाया जाएगा। सो हेल्थ और एजुकेशन से रिगार्डिंग ये स्कीम्स लॉन्च करेंगे। कुछ ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड काम है? जी मैम, ग्रीन एनर्जी के लिए जैसे ग्रीन हाइड्रोजन के लिए पॉलिसी लाने की बात की गई है। बस सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन ओवरऑल स्टेट को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या-क्या प्रपोज किया? मैम सरकार ने प्रपोज किया है कि 2026 तक हिमाचल को एक ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में स्थापित किया जाएगा। उसके लिए क्या-क्या स्टेप्स लिए जाएंगे? एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स है, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है और सोलर एनर्जी से रिलेटेड भी कुछ स्टेप्स अनाउंस किए गए हैं। कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिलेटेड भी यस मैम। बात की थी। जी मैम। आपके ऊना डिस्ट्रिक्ट से एक NRI है जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे, स्पेशली कोविड इसके बाद, जिनका बड़ा मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन रहा है हिमाचल स्टेट में। अमेरिका से जो मेरे को आ जाना चाहिए थे, जैसे अभी मैंने पूछा था कि वो कला केंद्र कहाँ पे बना है, तो क्वेश्चन के बाद मेरे को याद आया कि समूर में है एग्जैक्ट लोकेशन उसकी और इसका लता मंगेशकर कला केंद्र इसका नाम रखा गया है। तो उस समय एकदम से क्लिक नहीं कर पाया मेरे को, तो ये कुछ इश्यूज हैं जो मेरे को बाद में रिकॉल हो जा रहा है, पर जैसे ही क्वेश्चन आ रहा है उस समय रिकॉल करना में थोड़ी इसके लिए समस्या क्या करना पड़ेगा?
इसमें एक तो मैम प्रैक्टिस थोड़ी इनको दोबारा से रिवाइज किया जाए इन चीज़ों को। जैसे एनआरआई का नाम मैम ने पूछा तो अभी रिकॉल नहीं कर पाऊँ, उनके बारे में मैंने पढ़ा था कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड उनकी यूएस में सो उनका जैसे अभी नाम याद नहीं है, तो ये कुछ चीज़ें थी इनको रिवाइज करने की जरूरत है। ऑल्सो वी ऑब्जर्व कि मैम को कितना प्रॉम्प्ट करना पड़ा। आपको ग्रीन एनर्जी के बारे में काफ़ी कुछ आता था ऑलरेडी, मैम बोलते जा रहे थे तो आप उसमें स्टेप्स में या उसमें एडिशन कर रहे थे। जब आपको आता था तो ये तो आपको फ्लुएंटली शेयर करने बनता था। जी मैम, पिच क्या था? हाँ जी, एक्चुअली रिसेंटली ही मैंने अभी इसके बारे में पढ़ा था। अच्छा, तो वो था कि एकदम से रिकॉल होने में थोड़ी समस्या हुई। ओके। इसका मतलब अभी करंट अफेयर्स और हिमाचल स्टेट स्पेशली तो आपके डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जी उसको ब्रश अप करिए जी क्योंकि वहाँ पे ये एक मेजर चंक होगा आपके क्वेश्चंस का। अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट को अच्छी तरह से जानते हैं ना, इट्स अ वेरी नाइस इंप्रेशन ऑन द बोर्ड। Also, there was a need to say that मैं already 3 बार HCS का दे चुका हूँ HCS का already, interview, हाँ, UPSC। और मैं UPS का कैंडिडेट हूँ, कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, एक्चुअली मैम मेरे को किसी प्रीवियसली जो सिलेक्ट हुआ उसने सजेस्ट किया था कि अगर आप ये खुद ही बता दोगे तो ये इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन। सो उसी के It can go anyway, मतलब it can be like it can take you to the this has been a failure story, you know, मतलब अगर किसी ने स्ट्रेस इंटरव्यू क्रिएट करना हो तो भाई आप इतनी बार दे चुका, आप क्लियर क्यों नहीं कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम हो गई इतनी, यू अंडरस्टैंड। मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन उतना ही दो, या तो वो आपकी स्ट्रेंथ्स हो जहाँ से आप और उनको बिल्डअप कर सको और अपने बारे में और पॉजिटिव चीज़ें बता सको, है ना, या फिर ना दो। That's what I feel. I don't. What is your take on it? I suggest कि even if you want to tell about your HSC interviews, that is fine. UPSC को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, तो फिर वो पूछ लेते हैं कि UPSC अब दोगे, and you know that can go against you. HSC में there is no harm telling them. You know it works for you. जो अपना ये है पछाड़ वाला लड़का है, what is his name, रजनीश के लिए it has worked. तो उस HS पे कोई हार्म नहीं। मुझे ना आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द UPSC एंगल, इफ एनी कैंडिडेट ब्रिंग्स इन द UPSC एंगल, बिकॉज़ कमीशन को फिर पता चल जाता है कि जब आपका UPSC हुआ तो आप हिमाचल छोड़ दें, है ना। तो UPSC वाला रहने दो, HS का अगर आप बताना चाहते हो तो वो बता सकते हो। और अगर वो फेलियर की तरफ जाए तो बोलो दिस shows how perseverant and resilient I am. And I'm so passionate about this that no matter what the result is for last 2 years, I have the capacity, I have the tenacity to come back here because I really wish to serve my state. Say something of that sort. Okay, और भाई इतने सारे आपने वो लिखे हुए हैं अपने hobbies, but honestly मैं बहुत ज़्यादा satisfied नहीं हूँ। एक तो उसको कम करिए, है ना, you don't have to mention so many hobbies। और ये मेडिटेशन वगैरह में तो फंस जाते हैं नॉर्मली। व्हाट डू यू से? जिसमें आप कंफर्टेबल हो, प्रैक्टिस करते हो, बट एक या दो हॉबीज ज्यादा सुडोकू चेस पे जाओ ना, मतलब को एक सोच के देखो कि जो एक पैनलिस्ट होंगे वो कितना सुडोकू और चेस के बारे में जानते होंगे। मुझे लगता है अगर एक सुपर स्पेशलाइज्ड हॉबी आप शेयर कर लो और उसको मास्टर कर लो तो आपका अपर हैंड हो जाएगा, क्योंकि कॉमन मैन सुडोकू और चेस के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जान सकता अनलेस somebody is very good with sudoku or somebody is good with chess. सुडोकू अलग-अलग किस्म के होते हैं, उनके नाम भी होते हैं। उनके नाम देखिए, जी मैम, गूगल करिए और 4 या 5 आप कोई फीडबैक नोट कर लीजिए। हाँ, प्लीज कीप नोटिंग डाउन, ठीक है। ऐसे ही मेडिटेशन भी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे या तो बेटा बिल्कुल इसको घोट के पी जाओ और बिल्कुल मास्टरी कर लो। जी मैम, एक्चुअली मैं इसको डेली प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैंने सोचा था कि इसको लिख दूंगा, पर इसको थोड़ा सा और ब्रश अप करने के लिए बोला। हाँ, या तो इसको ब्रश अप कर लो या फिर यहाँ से हटा दो या वॉलीबॉल कर लो। जैसा भी सफिशिएंट हाँ, बहुत है। इसके अलावा वॉलीबॉल कहना चाहते हैं, ये फिजिकल एक्सरसाइज मेडिटेशन, इसमें मतलब कहीं ना कहीं मुझाव आ जा सकता है। ओके मैम, मतलब कि डेली रूटीन और हैबिट हो सकती है, हाँ। क्योंकि आपकी हॉबी नहीं हो सकती। हाँ, ओके ठीक है ना, ये। और मैंने क्या लिखा है, सॉरी, हाँ वो आपका बहुत अच्छा था लेटरल एंट्री वाला, दैट वाज नाइस आंसर कि इंजीनियर होते आप क्यों इधर आना चाहते हो। बाकी मुझे यही लगा कि थोड़ा हिमाचल के बारे में थोड़ा और ब्रश अप करने की जरूरत है। आपका प्रेफरेंस क्या है? फर्स्ट फर्स्ट सर एचएस, देन तहसीलदार,
उसके बाद सर बीडीओ डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर। योर फादर हैज रिटायर्ड एज अ नायब तहसीलदार, तो जी सर। थोड़ा मुझे लगता है उसके बारे में थोड़ा पूछ सकते हैं। जो फादर साहब के क्या जॉब प्रोफाइल रहा था, ये लास्ट इंटरव्यूज में भी पूछा हुआ है। To be very clear, Indian districts में उन्होंने सर्व किया। ओके क्या काम करते क्या काम? एडमिनिस्ट्रेशन में एनटी का क्या काम रहता है जी मैम। ये आप ज्यादा रहे नहीं है उन्होंने। ऊना में नहीं मैम, मैं रहा हूँ स्कूलिंग में ऊना से ही हुई है। उसके बाद मेरा हमीरपुर में पढ़ाई करी, उसके बाद गुड़गांव शिफ्ट हो गया मैं। अभी तैयारी आपने गुड़गांव रह के करी है जो ये 17 नहीं में? नहीं, उसके बाद सर दिल्ली में था मैं, कुछ टाइम तक कोचिंग ली मैंने, और उसके बाद सर 2019 से मैं फिर ऊना में हूँ। ठीक है। सर श्रीयान की बात कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे? नहीं मैम, अभी नहीं। ये मेरे 2017 में मैंने छोड़ दी थी जॉब। अच्छा, ओके। तब से फुल प्रोजेक्ट तैयारी कर। फिर तो all the more reason that you should stay at your level for interviews. Because you have 6 year, 5 year, Yes. 7.5 year. सर एक्चुअली इसी चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था। You have to mention. Again, I would suggest stick to HSO. मैंने 4 बार ये चीज़ बात करी। बाकी ठीक है, कंटेंट वाइज कोई समस्या नहीं है, थोड़ा एक बार ब्रश अप कर लेना हाँ। फैक्ट्स को। वो तो देखो सब कुछ तो आता नहीं 19 को 21 कर लो बस। बस इतना ही। हालांकि सबको एवरीबॉडी इज नॉट अवेयर ऑफ एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड इट, बट जो मुद्दे काफी ज्यादा चल रहे हैं जी सर। इसको थोड़ा सा देख लेना स्टेट के बारे में। बाकी मैं बता दूंगा, आई थिंक यू फाइन, थोड़ा आई कांटेक्ट मेंटेन कर लेना। Okay, बस that is missing, you maintain eye contact with the person who has asked you the question but not the rest of the panel, so try to engage them as much as you can. ओके सर। Otherwise, you are a pleasant, pleasing personality. When you go for the interview, you should look better groomed, थोड़ा अपना शेप वगैरह Yes. अच्छे से आप उसको करके जाना। Either you should have beard or it should be completely Yes. clean shaven. That's totally कोई problem नहीं है फिर। जी सर। बाकी वो एक दो चीजें वो श्रीयन वगैरह जैसे बेसिक्स है वो काफी, यस सर। तो बजट में बड़ा इस बार को एम्फसाइज किया गया है। यूपीएससी एस्पिरेंट है तो जो बजट तो पढ़ा ही होगा आपने। यस हमारा जी सर। यूनियन बजट एक बार उसको रिवाइज कर लेना, नोट्स वगैरह अगर बने हुए तो बहुत क्विकली उसको जस्ट स्काउट थ्रू इट। ओके सर। है ना? तो बाकी स्टेट का मैं बताइए। स्टेट में आपको फूड पार्क जैसे मान्यता, तो आपके पॉसिबल क्वेश्चन बल ट्रक पार्क पर आ सकते हैं। ओके ग्रीन कॉरिडोर आप यू नो इट, बट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इंक्लूड नहीं हुआ हूँ ना, बट हिमाचल गवर्नमेंट हैज रिक्वेस्टेड द यूनियन गवर्नमेंट टू इंक्लूड इट। जो अमृतसर कोलकाता अमृतसर वाला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, उसमें ऊना को इंक्लूड करने के लिए कहा है। ओके that will आपका enhance करेगा। यूनिवर्सिटी एनआरआई का है ये पार्क्स एंड ऑल, मतलब क्योंकि वो आपकी जो फॉर्मर मिनिस्टर है वो फिशरीज के भी मिनिस्टर रहे हैं जी मैम। ना, पंचायती राज जी। के अलावा कवर जी। बट इंडस्ट्रियल्स में गगरेट को भी आप मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज अभी और भी नए इसमें एरियाज आइडेंटिफाई किए जो उन्होंने डेवलप होंगे। जी मैम। आपका जो है ये अरवली गगरेट मेदपुर तो है ही आपका। जी मैम। इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है इस बात से। जी why drug park in Una? Why not in Nanagarh? Why not in Batti? और जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट आ रहा है ना, हाँ जी। वो दो ही डिस्ट्रिक्ट्स में होगा, गवर्नमेंट इज डिबेटिंग या ऊना में आएगा या कांगड़ा में आएगा। ओके It depends upon the logistics availability and availability of the land. ओके मैम। बजट में नहीं किया, बट गवर्नमेंट ने फर्दर जो है वो पार्ट दिया Okay. था कि आपको ऑपरेशन पता होनी चाहिए ग्रीन Okay. लाइट। और जब भी ग्रीन स्टेट के इनिशिएटिव्स की बात हो, सबसे पहले ईवी की बात करें, बिकॉज हिमाचल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैज बिकम द फर्स्ट डिपार्टमेंट इन द कंट्री ई व्हीकल्स के लिए। जी मैम। तो ये हिमाचल की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। जी इसकी सबसे पहले बात करो कि ग्रीन स्टेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, जहाँ पे जी। ई डिपो बन रहे हैं, चार्जिंग स्टेशंस कहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे। जी मैम। बजट के उसमें एक बार आप उसको ब्रश अप कर लेंगे। और स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी, आई शेयर द डॉक्यूमेंट इन द ग्रुप आल्सो। ओके उसी में हाइड्रो पावर पॉलिसी मर्ज हो गई है। ओके गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट हाइड्रो पावर बैटरी पॉलिसी के 3-4 मेजर पॉइंट्स आप पढ़ लें, क्योंकि ग्रीन जी। स्टेट बार-बार आ रही है तो जी। टॉक होगा। यदि आपसे पूछे कि बजट का यूनिक फीचर क्या है, सो बजट
has a very humanistic, compassionate governance का perspective है budget. जी जो सुखाश्रय जी scheme है. right. So this budget for the first time has focused on this pillar of compassionate governance. यहाँ से शुरू कर सकते हैं. And then green, sustainable development के साथ green development की बात करें. तो ये दो बजट के दो मेजर फीचर्स हैं एचपी बजट के. जी जैसे आप ग्रीन डेवलपमेंट बोलेंगे तो नेचुरली ग्रीन स्टेट के बारे में पूछेंगे तो वो आपके पास टिप्स पे होने चाहिए. yes All these initiatives, EV Right. policies, vehicles, whatever this part. Right. Pune district खास करके उसके green corridor, 5 green corridors government has identified. जी तो उन आपके उसमें आता है. मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट को कहीं ना कहीं बीच में लेकर आना. okay हॉर्टिकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रैगन कल्टीवेशन भी. आई जस्ट शेयर दैट प्रोजेक्ट. उना डिस्ट्रिक्ट में सक्सेसफुली हुआ है ना आपका. जी right. तो ये भी पूछा था. सिर्फ इंडस्ट्री नहीं पूछी जा सकती ना. एचपी शिवा प्रोजेक्ट में भी उना डिस्ट्रिक्ट है. जी तो उसको जरूर यूट्यूब पर इसका आपके पास जो एसएनएम यूट्यूब चैनल पर वो इसका शेयर part किया था है. शिवा हाँ, प्रोजेक्ट पर. शिवा प्रोजेक्ट है तो आप ड्रैगन कल्टीवेशन जरूर करें. उसको आप सब्सक्राइब कर लेना, वो काफी कुछ होता रहता है उसमें. इसके आर्टिकल स्पेसिफिकली टू दिस आई जस्ट शेयर. कब मैनेजर फाइनल मीटिंग मैम इट्स इन 12th of May. 12. आपका कोई सवाल है बेटा, कुछ आप पूछना चाहते हैं? No. How was your experience? आपने और भी दिए हैं? जी मैम, it was very pleasant experience मैम. You have decided on what you're going to wear that day? Yes ma'am, I have bought a suit. हाँ. जी मैम, वो decided है. ठीक है. जब आप जाएंगे बेटा मुड़ के, हाँ, you have to not show your back and go, just turn around once, nod and then. Okay, thank you ma'am. All right.